before 5 to 6 months maximum, or the recent one like 12 January. So okay, so now attempt, tell me about your attempt. Actually, you are targeting for exactly which year, right? Or you are eligible for which year? It's 24 or 25? 20, everyone is 24. Okay. So you are targeting for 2024. Good. And yes, is there anyone from 25 targeting for 25? No. So everyone is for, okay, so only you. 25. So means 2024. Okay, so that means how much time you have with you for, and because you know about all GS part and whatever is the mains and prelims and mains, okay, interview also, तो वो सब आपको पता है. What is exactly the syllabus and everything, what is the process of examination. I'm not going into this detailed discussion of this pattern, okay. But now tell me that how much time you have with you to prepare for specifically mains part, because prelims, you know that prelims will start from the January 2024 will start with the prelims. So that is generally the routine of the 1 year. So that is January to May, you will study for the prelims, and after May, you will start with the, yes, generally. If you clear the examination, then you will obviously prepare for the mains, and if not, then again, yes, you will start with the for the mains, but till December. Okay, if you clear, then till September, for example. But anyway, if you are cleared or not cleared, but anyway, you have to study for mains from June to December. Okay, that is the expected, right? That is expected your timetable of the year. So now, if you are targeting for 2024, I hope everyone is aware about this, that you have only 5 to 6 months with you. Okay, in this 5 to 6 months, you have to cover your entire, yes, GS part. That is all 4 GS, 250 into 4, that is 1000 mark of GS. Paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, right? Along with that essay that you have to cover, that is 250 marks, means 1250 plus your 500 option. Okay, so 1750 is your mains part. And yes, I hope you have selected at least optional. You have finalized the optional. हाँ सर हमने geography optional लेना है, and शायद वो अभी तक final हुआ ऐसा मैं consider कर रहा हूँ. And this is good decision definitely, because you know that geography is again the part of, clearly the part of GS1, directly the part of GS1. But I will say that it is not only related with the GS1, but it is also related with GSP. Okay, because in GSP, you know that environment is there, disaster management is there, and some interlink. Again, geography is again there, because in 2022 there was some question related to earthquake, some troposphere, some smog, some pollution related issues, where you have a great connection of the geography related part, right? So that's why, yes, if you see the number of questions, number of marks in GS1, that you will get the benefit from this geography optional part. So that will be around 120, 140 marks. Okay, out of 1000, definitely out of 1000. But the thing is that even I have mentioned this, yes, how to choose this as your optional. मतलब क्यों choose करना चाहिए optional, कोई भी optional हो चाहे, तो वो थोड़ा सा decision यहाँ पे, and it's not about the marks what you are getting in this mains part. Okay, मतलब सिर्फ आप ये 100-200 के लिए, मतलब आप इसलिए optional नहीं ले रहे हो कि आपको यहाँ पे 200-250 लेके आना ना, मतलब वैसे तो फिर सभी तो PSR ही ले लेंगे, so everyone will take PSR definitely, right? तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए, because आपने GS के चक्कर में अगर आपने ऑप्शनल कोई ले लिया, just imagine, but you don't have interest in that subject. If you don't have interest in that subject, you are not performing well in optional, then how you will get the knowledge of benefit in the even the mains part, right? It is not possible, definitely not possible, right? So इसलिए आपका इंटरेस्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है. पहले तो खुद को ये पूछो कि सच में मुझे इंटरेस्ट है क्या,
इस सब्जेक्ट में। देन आफ्टर दैट सेकंड आता है कि yes, if I'm interested in somewhere in maths optional and any optional, but हाँ आपका academics भी check कर लो एक बार. Sir, I have selected civil engineering because my academics is civil engineering, but in civil engineering आपके 2-3 साल ड्रॉप आउट हो गए, तो फिर कुछ मतलब है कि उसका नहीं, मतलब आप वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, सो आप सेम सिमिलरली यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे क्या? नहीं. ठीक है, तो आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे कि फॉलो द टॉपर्स, फॉलो द पर्टिकुलर टीचर, एंड फॉलो कि आपको मटेरियल किसका अवेलेबल है, फॉलो द थिंग्स की मेंटर किसके अवेलेबल है, या किसके एजुकेटर ज्यादा आपको अवेलेबल है, टीचर ज्यादा अवेलेबल है. तो ये सारी चीज आपको मल्टीपल गाइडेंस मिलेगी टू डिसाइड अबाउट द ऑप्शनल. बट सिंपल आई विल से किसको भी कंसिडर मत करो, सिंपल टेक योर ओन डिसीजन, because optional is completely your, it's about your interest, it's like choosing a life partner, है ना? मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपके बैच में बताया था कि इट्स लाइक चूजिंग लाइफ पार्टनर, जो कि हम बदल नहीं सकते फिर से, because you are taking lot of efforts in that option. Almost you have to invest in any of the option, you have to invest minimum 6 to 7 months minimum. I'm talking about minimum. And if you find out that I'm not comfortable with that option, then this 6 to 7 months is waste, nothing but waste. Again you have to start with the zero with another option. Getting my point? So उसका कुछ फायदा हुआ क्या फिर? ठीक है, इसलिए बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट स्विच करते रहते हैं डिफरेंट ऑप्शंस में. सो डोंट डू दैट, टेक योर ओन टाइम. मैं तो ये कहूंगा कि और 5 दिन ले लो और 10 दिन ले लो, बट एक ही बार फाइनल कर लो कि हाँ ये ऑप्शन हमें लेना है. एंड वो कैसे चूज करना है, अभी ऑप्शन कौन सा लेना है, ठीक है आप सिलेबस निकालो, जैसे अभी आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस निकाले होंगे, राइट? और फिर देखा होगा कि हाँ ये तो थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा है, एंड किसी का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है यहाँ से, फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स. ओके, तो ये होता है ना हमारे भी बैकअप एंड में, हाँ सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो कुछ डायग्राम वगैरह अच्छा निकाल लेंगे, और फिर थोड़ा कंप्रीहेंशन भी अच्छा हो जाएगा इस टॉपिक को रिलेटेड. तो वो भी एक अप्रोच होता है. तो अगर लगा तो आप वो भी चेक करके देखो कि हाँ अगर मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या मेरा बैकग्राउंड ये है, या मेरा बीए में ज्योग्राफी वगैरह था, तो वो चेक करके देखो कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे क्या. तो फर्स्ट डाउनलोड द सिलेबस, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू. Then go through the PYQs. I know you will not understand the PYQs because it is completely mains related PYQs, right? तो आपको कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, but at least you can connect with the paper 2 of that optional, right? You don't have to read directly the philosophers and everything, right? Geographer, etc., etc. ठीक है, आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया तो उसके एटलीस्ट आप स्मूथ एरियाज पे तो टच कर सकते हो. That you can do. So अगर वहां पे फाइंड आउट हुआ हाँ yes I can manage it, सो यस अगेन वो एक थॉट प्रोसेस में आ जाएगा कि हाँ चलो मैं ये ऑप्शन ले सकता हूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी टॉपर को देख के मत लेना ऑप्शन, चाहे वो ज्योग्राफी हो या कोई भी ऑप्शन हो. फर्स्ट थिंग. सेकंड है कि आपको इंटरेस्ट है, डोंट थिंक अबाउट दिस कि इट इज वेरी ह्यूज ऑप्शन. बहुत लोग आपको कहेंगे हिस्ट्री इज ह्यूज एंड ज्योग्राफी इज ह्यूज, बट ह्यूज थिंग्स बिकम स्मॉलर व्हेन यू हैव इंटरेस्ट. सच बात है ना, मतलब मैं तो बोलूंगा 10 किलोमीटर चलो, आपका इंटरेस्ट है तो आप चलोगे. और एक आधा कोई बंदा होता है कि जो एवरेज तक चढ़ लेता है बिकॉज इंटरेस्ट है, उसके लिए कुछ नहीं लगता है ना. मतलब द थिंग इज दैट कि इंटरेस्ट होगा तो हम कहाँ पे भी चढ़ सकते हैं, बट आपको इंटरेस्ट नहीं तो वो सीधा प्लेन भी चलना मुश्किल हो जाए ना. इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. इफ यू आर इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट सो गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. इवन कोई कहेगा कि सर मतलब कैसे कंप्लीट होगा 6 मंथ में, हो सकता है. मतलब आप अगर प्रॉपर एफर्ट्स देते हो, एंड इवन वी विल आल्सो टेक डेफिनेटली पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा ना, तो वो क्लास में आपका बहुत अच्छे से कवर होगा. अलॉन्ग विद दैट जो भी नोट्स दिए जाएगा, आंसर राइटिंग होगा, मतलब उनके आंसर में आगे बताऊंगा कैसे कैसे कवर होगा. बट द थिंग दैट कि जो भी हम कवर करेंगे तो क्लास के पेस के साथ भी अगर आप चलते हो तो यू कैन कंप्लीट अबाउट 80%. मैं भी एग्जैक्ट नहीं करूंगा, आई विल टेल यू द ट्रुथ एग्जैक्टली कि वी कैन कवर अप टू 80% टिल दिसंबर. ओके, तो 80% तक सिलेबस आपका हो सकता है, पॉसिबल है अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे से एफर्ट्स लेते हैं. इवन थोड़े क्लासेस भी एक्सटेंड कर लेते हैं कभी कभार जब लगेंगे तब, तो 80% तक पॉसिबल है. यस 80% इज क्वाइट सफिशिएंट इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स. देन इवन आफ्टर प्रीलिम्स जो रिमेनिंग 20% है हम उस पर वर्क ऑन कर सकते हैं. ओके, जैसे कुछ प्रोडक्टिव एरियाज भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी अगर आप देख सकते हो तो फिर एरियाज पे आप टारगेट करो तो वहां से प्रोडक्टिविटी ज्यादा बनेगी. जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी होगा, पेपर 1 में वहां पे अच्छे आउटकम्स मिलते हैं. पेपर 2 में जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर्स हो गए, मिनरल चैप्टर्स हो गए, रिसोर्स चैप्टर हो गए,
ना, बट बिकॉज फिजिकल सेटिंग तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इट विल कवर अलॉन्ग विद योर जीएस पार्ट. सो व्हाटएवर द रिमेनिंग इज द कंटेम्परेरी इशू एक्सेट्रा, आगे हम सब डिस्कस करेंगे. तो ये मैनेजेबल हो सकता है अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो तो. सो दैट इज ऑल द थिंग. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं. एटलीस्ट आप आज यहाँ तक आए हो तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में थोड़ा तो इंटरेस्ट है ना, तो उसके साथ हम चल सकते हैं. एंड जितना हो सकता है तो वो जल्दी कवर करेंगे. रही बात इसके आउटकम्स कितने हैं, मतलब सच में बेनिफिट्स होगा, यस डेफिनेटली विल गेट द बेनिफिट इन प्रीलिम्स, बिकॉज 23 क्वेश्चन ये आपके ज्योग्राफी एनवायरमेंट कहीं ना कहीं कनेक्शन. और एनवायरमेंटलिज्म तो आपको पेपर 1 में आ गई, पेपर 2 में भी अच्छा खासा एनवायरमेंट का कनेक्शन. तो एनवायरमेंट भी आपका डेफिनेटली पक्का होगा. उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा अगेन प्रीलिम्स पे. तो इस बार आपने देखा होगा अराउंड 38 क्वेश्चन बचते हैं in 2023. Okay, it's only about environment, but if you add some geographical question, so it is around 38 question. और मैंने लास्ट सेशन में कुछ 12 जून के इंट्रोडक्टरी सेशन में पूरे दिखाए भी थे. यहाँ दिस आर द क्वेश्चंस. ओके, लगा तो मैं आपको ये पीडीएफ बाद में शेयर करूंगा, वहां पे आप देख लेना एक एक क्वेश्चन. नो क्वेश्चन इज एग्जैगरेटेड कि हाँ ये कहीं और पे इधर उठा के लेके आ गया. नो, 38 क्वेश्चन वाज देयर एंड यू नो द प्रीलिम्स दिस टाइम इज अराउंड 80 to 85 है ना. सो दैट मीन्स आप 75 तक तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट से पहुंचे. तो ये आप जब इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपको उसका बेनिफिट, यहाँ का बेनिफिट वहां पर मिलेगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मेंस में कुछ बेनिफिट है. यस, देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट. यू कैन सी कि अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन जीएस 3 में आपको मिल ही जाएगी एनवायरमेंट एंड डीएम के. एंड फ्रॉम जीएस 1 एनवायरमेंट के 1 and 2 इन जीएस 1 एंड ज्योग्राफी के वो अलग से, मतलब अराउंड एक पकड़ के चलो कि कुछ 2020 में अगर हम देखते हैं, इफ यू सी द 2020 पेपर, ओके जस्ट होल्ड ऑन. तो इसमें आप देख सकते हो अराउंड 7 क्वेश्चन, around 7 question was from paper 1 in 2020, which is interlinked environment, geography and DM, including all 3. So 7 questions are there in GS1 and around 5 questions in GS3. This is 2020 paper simply. You can just have a fast look. Jal Shakti again, water security, obviously part of somewhere geography, agriculture, you know that. Storage, irrigation methods, yes, sunlight and etc. Electricity, solar energy. Obviously, it is environment part, right? Then clean air program, environment part. National Clean Air Program, last question. That is environment part. EIA, environmental impact assessment, environment part. Then circum-Pacific zone, process of desertification, Himalayan glacier melting, then interlinking of rivers, million cities flooding. All these issues are related to geography, environment, DM or agriculture. Okay, so comprehensively around this 7 and this 5, around 13 to 15 questions are done, right? So let's consider each question is for 10 marks. So at least मतलब 70-80 तो जा ही रहा है. तो आप समझ लीजिए, not 70, कितने हो गए टोटल? 13 to 15 अगर कहते हैं 150 marks, that is around 1. And 15 marks question definitely have there. A lot of other 15 marks also. So benefit is there. Definitely you will get the benefit. But again, I will come back to that point कि हाँ इंटरेस्ट है तो कर लो, है ना. बाद में वो बेनिफिट के बारे में मत सोचो. बट यूजुअली ये बताना भी पड़ता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के भी आते हैं पीएसआई में. सो दैट्स व्हाई मुझे भी कुछ चीजें काउंटर करनी पड़ती है. हाँ ऐसा भी है. आफ्टर दैट रही बात आपको कब तक क्या क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, राइट. ये तो आप सभी जानते हो कि GS3 सॉरी आपको पूरा जो प्रिपरेशन होगा, ओके, दैट यू हैव टू कंप्लीट बाय, yes, that you have to complete by the December 2023 तक. ये आपका टारगेट है, राइट. अभी जून तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट. इज दैट करेक्ट? नाउ यू हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ओनली. ठीक है. तो कितने महीने होते हैं ये? 3 and 3 अराउंड 6 months. ठीक है, जुलाई की पकड़ लो तो अराउंड 6 months you know. But in this 6 months you know that GS itself very huge subject है ना. एंड इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं टोटल ओवरऑल, बस एड ऑन कर लो सभी, तो कितने हो गए ज्यादा से ज्यादा. GS1 में चलो यूजुअली तो 2 ही सब्जेक्ट दिखते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. चलो नेक्स्ट क्लास सोसाइटी रहेगा. बट चलो पेपर 2 में ले लो, जनरली हमें क्वालिटी लगता है, ज्यादा ज्यादा हायर लगता है ना. वहां पे 2, यहाँ पे 2. एंड GS3 में एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, लाइक 3 to 4, राइट.
And ethics is we only consider one as a one. तो अराउंड सब मिला के कितना होता है, मैक्स टू मैक्स 10 सब्जेक्ट, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज इफ यू रियली ओपन आउट ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, सो लास्ट टाइम शायद मैंने बताया भी होगा आपको कि देयर इज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग डिफरेंट बुक, यू नो दैट. Ancient history different book, at least 100 pages book will be minimum 100 pages, right? And after that, medieval history different book, modern history different book, India after independence different book, world history different book, Indian society different book, world geography, Indian geography different book, NCERT different, right? Then after that, polity, social justice, governance, higher, all different books having different books. Even agriculture, internal security, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सब मिला के जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेशन किया था, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा रिपीट बताता हूँ, 25 होते हैं, अराउंड 25 एक्सेप्ट सीसैट. मतलब सीसैट छोड़ दो, तो होते हैं 25 समथिंग. इफ यू डिवाइड इट इनटू 6 मंथ, तो दैट पेयरली आप मतलब कितना होता है, अराउंड कितना होगा, हर महीने में आपको कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करने होंगे ऑन एंड अराउंड, जस्ट कैलकुलेशन करो, 4, अराउंड 4. Is that correct? Every month you have to cover around 4 subjects. Is it correct? 4 subjects. And 4 subject means every subject will get maximum 8 to 10 days. मतलब वो भी ज़्यादा मैंने बोल दी, 8 to 10 days. Is it possible to cover even ancient history in these 8 days? At least for new, not new student, new aspirants के लिए तो नहीं है. 7-8 दिन तो ancient history भी नहीं होता है. Polity तो दूर की बात है, right? So that means you have the crunch of time. Definitely you have crunch of the time. Okay? और इसमें भी हमें ऑप्शनल करना है, तो ये सारी चीजें मतलब करनी है, तो अभी टाइम वेस्ट मत करो. आई विल से दैट इमीडिएटली आप डिसाइड कर लो, आने वाले 3-4 दिन मैक्सिमम, 1 तारीख का आपका डिसीजन फाइनल होना चाहिए. दैट विल बी फुल एंड फाइनल कि हाँ मुझे इस ऑप्शन के साथ जाना है, वॉट एवर इट मे. मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा आपको वॉट इट मे, बट हाँ आई विल टेल यू दैट कि ज्योग्राफी ऑप्शन के बेनिफिट बहुत है. अगर देखो, 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, व्हाई टू चूज ज्योग्राफी एज ऑप्शन. फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू दैट, राइट. एक तो क्या है ना कि व्हेन यू नो दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय सेल्फ, मुझे ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना आता, या मेरे पर्सपेक्टिव शायद गलत ही लगते हैं हमेशा किसी को, है ना. ऐसा होता है कि यार इंडिया चाइना रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, लेट्स कंसीडर अबाउट पीएसआर इज देयर और एनी सोशियोलॉजी चैप्टर इज देयर. In this subject needs your perspective also. But in geography, not that much. Hardly 5 to 10%, maximum 5%. कि जहां पे आपका perspective लगेगा. It's geography is all about this and that you have to copy. If you are perfect in factual parts, if you are perfect in conceptual parts, then those concepts you have to put in your analysis. समझ में आ रहा है? मतलब ज्यादा कुछ लिखना है आपको नहीं. देखो जो फिक्स है वो फिक्स है. जो वेबर की थ्योरी लिखनी पड़ेगी. आपकी खुद की लिखनी है कि आपको क्या लगता है कि अल्फ्रेड वेगनर क्यों गलत है. लिखने का मतलब आपका कुछ वैल्यू नहीं है. द वैल्यू इज कि हाँ ये अलग अलग जोग्राफर्स आए थे, इनकी ये थे. जस्ट लेट्स कंसीडर पेपर 2. इवन इन पेपर 2, ओके, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, रिसोर्स चैप्टर, मिनरल चैप्टर, दिस चैप्टर्स आर. और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली, और लेट्स सी दिस सम पेपर, डायरेक्टली पेपर देख के बात करते हैं, ऐसा शायद थोड़ा नहीं समझ में आएगा, तो देख लो. सो लेट्स मूव टू इस सेकंड पेपर, जहां पे थोड़ा और आपको एटलीस्ट कनेक्ट होगा, क्योंकि चीजें क्या होती है कि पेपर 1 में अभी तक आपको पता नहीं होगा, अभी तक उतना आपने एंटर नहीं किया. सो दैट्स व्हाई. सो देखो पेपर 1 में तो मोस्टली क्या होता है कि एक तो आपको ये सबसे रिवार्डिंग सेक्शन होता है, जो कि आपको मैपिंग वगैरह करना होता है, जैसे डोला से दिया ब्रिज, है ना. ये करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा, बोमदिला पासस. सो ये आपको मतलब मैप में नोट करना होता है, बुकलेट्स में ही दिया होता है, वहां पे नोट करना होता है. ये आपका मतलब पेपर 2 का एक पहला बेट होता है. जैसे पेपर 1 एक होता है, आपको पता है सेक्शन कैसे होता है. सेक्शन पेपर 1 एक सेक्शन होता है, और पेपर 2 एक होता है. तो पेपर 2 का 250 इज दैट करते. पेपर 1 पता है सबको. पेपर 1 मतलब ठीक है, हम देखेंगे टॉपिक वहां पे देखेंगे, मोस्टली ज्योग्राफोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, है ना. देन पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी होगा, डिफरेंट थ्योरीज वगैरह आते हैं, तो वो सारा हम देखेंगे बाद में. बट द थिंग इज दैट कि पेपर 2 इज लाइक अ काइंड ऑफ अ जीएस पार्ट, नॉट लाइक कंप्लीट जीएस, बट 10% तो भी जीएस है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं आपको. तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सेप्टेबल है माइंड में.
देखो, critically examine the factors affecting unpredictability of southwest monsoon in system in India. Is it understandable? Definitely. The peninsular location of India provides scope for harnessing non-conventional energy resources. Discuss with the example. At least समझ में तो आ रहे peninsular India is somewhere they are expecting, right? You should know about that. Groundwater contamination in the fast expanding urban landscape. समझ में आ रहा है ना, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे में बात चल रही है, ठीक है. Then discuss the changes brought about the institutional framework of agriculture and evaluate its impact on the agrarian economy of the country. मतलब agriculture is there somewhere. Okay? तो मतलब क्या हो रहा है कि देखो एटलीस्ट हमें ये चीजें कनेक्ट हो रही है कि हाँ ये पार्ट है और ये थोड़ा जर्नलिस्टिक वे से पूछा. इवन GS2 का पार्ट ए होगा या सेक्शन बी भी होगा. मतलब इवन सेक्शन बी भी देख लो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट से थोड़ा एनवायरमेंट से कनेक्शन है. कैन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन प्लेज अ रोल इन ग्रासरूट लेवल प्लानिंग एक्सेट्रा. ओके. एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ द कंट्री. हाउ वुड डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट. मतलब देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको बहुत आपका कुछ आइडियोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव नहीं लिखा. सिंपली अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. आप यहाँ पे कुछ लिखोगे ऐसा कि नहीं हमें लग रहा है कि अभी दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन हुआ है इसलिए मानसून खराब है, ऐसा ये गलत है ना. बेसिकली मतलब आपको क्या किसी के रिलेशन के बारे में किसी के बहुत बड़े पर्सपेक्टिव के बारे में लिखना है? नो, यू सिंपली हैव टू मेंशन हाँ दिस आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर मानसून एंड नाउ these are fluctuating to the climate change because of climate change or whatever. Yeah, मतलब different. There are many factors. There is a Somali jet stream different pattern. It is showing different pattern. STWJ showing different pattern. Then after that, median Julian oscillation, El Nino, La Nino. Then Molokhi factors are there. There are multiple factors which are affecting the monsoon. On that basis, monsoon behaves. And if the monsoon is itself depend on various factors, so obviously it must be unpredictable. ओके मतलब ये सब हम पढ़ेंगे. बट मुझे एक बात बताओ, कितना भी कुछ भी लिखो क्या आपको बहुत कुछ फिलोसॉफी लिखनी है क्या, या आपके पर्सपेक्टिव कुछ लिखना है क्या यहाँ पे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट कुछ ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा कुछ लिखना है कि आपका पर्सपेक्टिव इसके रिलेटेड क्या है. तो इसलिए ऐसा ये सब्जेक्ट है. इवन इट इज पेपर 2. पेपर 1 में तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. देखो कि पेपर 1 में भी आप देखो तो डायरेक्ट ये स्पीलियो नाम से जो भी थियरीज होगी तो उसको डिफाइन करना है ना. व्हाट इज पोल्यूशन डोम है तो वो डिफाइन करना है. हाई एल्टीट्यूड एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या है वो डिफाइन करना है. सीक्वेंशियल चेंज इन द लैंड यूज क्या है वो डिफाइन करना है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपके इनपुट से ज्यादा है ना, आपके खुद के थिंकिंग से ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जस्ट व्हिच इज गिवन इन द बुक्स और इन करंट अफेयर्स एटलीस्ट उसका टच हमें रखना पड़ेगा. राइट. So that is the benefit of this subject. Even history, we can say that history में भी यही benefit है. 1857 रिवॉल्ट में आपको कुछ मॉडर्नाइजेशन लिखना है क्या, अभी का नहीं लिखने की जरूरत है. तो बेसिकली वहां पे वो चीजें नहीं आती. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सब्जेक्ट. देन नेक्स्ट इज द, अब यहाँ तक ये रहा पेपर, जस्ट एक थोड़ा सा देखा हमने. अब रही बात हमें सब कुछ ये कवर करना है. सो डेफिनेटली विल कवर दिस विद द बेस्ट थिंग कि हम थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं कि जिसमें अभी क्या करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल just wait a minute. देखो जिसमें हमने लास्ट टाइम एक टेस्ट दिया था, जस्ट लेट मी शो दैट. थोड़ा डेट चेंजेस हो गए, नथिंग एल्स. ओके. तो फॉर एग्जांपल व्हाट वी विल डू, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कुछ अभी 2-3 महीने सिलेबस भी काम चल रही है उस पे. And when we start with the particular topic, like let's consider physical setting. It is the first topic of paper 2. Okay, paper 2 का एक first topic है. तो उस पे हम again क्या करेंगे कि एक topic आपको cover करना है. Then you will start with the test series. मतलब kind of answer writing भी होगा. मतलब क्लास में जो चीजें complete हो रही है, okay, क्लास में जो चीजें complete होगी, तो on that basis, okay, on that basis, immediately we are taking the last 10 years PYQ. Whatever it be, right? इस फिजिकल सेटिंग जैसा हम कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ ये बहुत कम जगह पे होता है, इतना मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है. सो इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट व्हाट हैपेंस, लर्निंग इज द ओनली पार्ट. विद एजुकेटर पर्सपेक्टिव टीचिंग ओनली चल रहा है. मतलब बस टीचिंग चल रहा है और अब लर्निंग चल रहा है. ठीक है. आंसर राइटिंग इज नॉट देयर.
and usually students start answer writing after completing the courses. But after completing course मतलब after December आपको टाइम लेके मतलब आप अटेम्प्ट ही नहीं दे सकते फर्स्ट थिंग। तो ये पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते, फिर अभी करना कब है? तो जब करने जाओगे तो डर भी होता है कि हाँ सर लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे ना। अभी तक आंसर राइटिंग क्यों नहीं करते स्टूडेंट्स? एक डर होता है करने की कि सर अभी तक तो हुआ नहीं है, अभी तो सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ है, एटलीस्ट सिर्फ एक ही बिट कंप्लीट हुआ है, तो डाइवर्सिटी कैसे आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बट इन आवर केस जब भी मैं कोई पेपर 2 का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, सो इफ वी कंप्लीट फर्स्ट बिट ऑफ फिजिकल सेटिंग देन इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट विद ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। मतलब जिससे क्या होगा आपका टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग चलते रहेगा फर्स्ट। सेकंड थिंग जैसे जैसे कुछ पर्टिकुलर डेज हो जाते हैं, so then we will have test on that particular day. For example, let's consider we have started from 1st November, तो 17 नवंबर का आपका एक टेस्ट होगा। ओके जस्ट इमेजिन, मतलब ये लास्ट ईयर का कुछ था प्लान, वैसे ही मैंने आपके सामने रखा है, ये थोड़ा चेंज होगा। तो सिमिलरली वी विल हैव टेस्ट आल्सो। अगेन वी विल स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट टॉपिक 6 कल्चरल सेटिंग, 7 8 9 10 जो भी मतलब हम कवर करेंगे, राइट? तो दैट अगेन वी विल हैव टेस्ट इन दिसंबर फॉर एग्जांपल, राइट? 17 दिसंबर के बाद, सॉरी 17 नवंबर के बाद फिर दिसंबर में टेस्ट रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन में देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रिपरेशन के कुछ फेजेस होते हैं। एक तो आपका लर्निंग होना, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होना, है ना? एंटायर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, इज दैट करेक्ट? अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं? कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कोचिंग इज इंपॉर्टेंट और नॉट? यस, फॉर ज्योग्राफी इट इज इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट सेकंड फेज आपका क्या होता है? यस, दैट विल बी लाइक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, राइट? सेकंड फेज आपका क्या होता है? रिवीजन। सर हाँ मुझे रिवीजन करने पड़ेंगे। थर्ड फेज में आपका क्या होगा? दैट विल बी नाउ यू विल थिंक अबाउट आंसर राइटिंग, राइट? कि सर हाँ मैंने थोड़ा पढ़ लिया, बुक रीडिंग भी अलॉन्ग विद दिस बुक रीडिंग भी कर दिया, रेफरेंस बुक जो भी थे वो रीड कर लिए, क्लासेस कर लिए। So these are my phases, and after that I will think about, sir, yes, I will do answer writing, mostly the topic wise answer writing, topic wise answer writing. So ये मेरे phases होते हैं। Then after that I will think about, sir, हाँ ठीक है, I will take the test exam, okay? And now अगर ये मेरा पूरा सब कुछ क्लियर है तो फिर मैं मेंस एग्जामिनेशन दे सकता हूँ। मतलब ये सारी चीजें होगी। तो अगर मेरे पेपर 1 एंड पेपर 2 के पूरे आंसर्स टॉपिक वाइज रेडी है, एटलीस्ट मैंने 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं प्रॉपर यूपीएससी जैसे, बिकॉज आप जानते हो 250 मार्क्स का पेपर होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड 3 घंटे में आपको पेपर लिखना होता है ना। कभी लिख के देखो तो समझ में आएगा कि यार ये मतलब ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि हार्डली आप 7-8 क्वेश्चन मैनेज कर पाओगे इन 3 आवर्स। इट्स रियली नॉट सिंपल, एटलीस्ट फॉर द मैटर ऑफ ज्योग्राफी इट इज नॉट सिंपल, बिकॉज ज्योग्राफी में आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, प्रेजेंटेशंस, ये काफी सारी चीजें करनी पड़ती है जो 3 घंटे रियली शॉर्ट होता है। चलो एक केस में हम समझ लेते हैं कि आपने आंसर राइटिंग अपना अपना कर लिया, जैसे मैंने आज एक कोई क्वेश्चन दे दिया एक्सवाइजेड कोई भी फिजिकल सेटिंग के रिलेटेड। सो व्हाई छोटा नागपुर रीजन इज नोन एज आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमंग द ओशन ऑफ पॉवर्टी, डिफाइन दिस स्टेटमेंट, एलैबोरेट दिस स्टेटमेंट। सो ठीक है, आप यहाँ सर्च कर लोगे कि आप क्यों ऐसा कहा जाता है, मतलब छोटा नागपुर तो इतना प्रॉस्परस है तभी भी पॉवर्टी में क्यों है ना? तो यहाँ पे हमें एनालाइज करना होगा वो चीजों को, थोड़ा रिसर्च करके लिखोगे। इट विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट, 30 मिनट। 30 मिनट में अगर आप एक आंसर लिख पा रहे हो तो आप 3 घंटे में कितने लिखोगे? 6 आंसर्स होंगे मैक्स टू मैक्स। चलो 10 पकड़ लेते हैं बहुत अच्छे केस में, तो 10 भी अगर लिखते हो तो 10 का शॉर्टेज। तो ये कहाँ से सीखो? मतलब ये आपने करता है, हम अगर टॉपिक कवर कर रहे हैं और मैंने कुछ होमवर्क लिया आपको आंसर लिखने दिया, आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग 20 to 30 मिनट टू राइट अ पर्टिकुलर आंसर, और वही हैबिट आपकी बनती रहेगी 2-3 महीने। बट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ना। मतलब आप समझ लो दिसंबर तक आपने पूरा सिलेबस भी कवर कर लिया केस, और हमने टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग भी कंप्लीट कर लिया। सो नाउ नेक्स्ट इज आपका डायरेक्टली प्रीलिम्स होगा, आप सब छोड़ दोगे, जो भी चल रहा है वो छोड़ दो ना, आप पढ़ ही नहीं सकते। आप जनवरी में स्टार्ट करोगे प्रीलिम्स के लिए एंड देन मई में एंड करोगे, मतलब जून ही पकड़। और जून मई के बाद मतलब बेसिकली जून जुलाई अगस्त, ओनली 3 मंथ यू हैव, एंड वो 3 महीने में भले ही आपके पास कितने भी टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग है, बट आप वो 3 घंटे में लिख पाओगे पेपर दिया तो? इज इट पॉसिबल? 10 से 12 तक लिख सकते, भले ही आपके पास कितना भी प्रिपेयर्ड है, कितना भी नॉलेज है, बट वो नॉलेज आपको कहाँ उतारना पड़ेगा? पेपर में टाइम पे उतारना पड़ेगा उसको। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखे, वैसे क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिखना आना भी चाहिए। सो व्हाट इज लैकिंग नाउ?
Even if you are clearing the prelims, you are not able to cover the entire paper of the geography optional. Just consider that. Now what is the lacking कि आपकी मेंस निकल नहीं पाएगी, और क्यों नहीं निकल पाई? क्योंकि आपका स्पीड कम गिरी. एंड दैट्स व्हाई आई विल नॉट से कि आपको दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है. आई विल से दैट नवंबर फर्स्ट वीक मैक्स. इट्स नॉट अबाउट कवरिंग कंप्लीटिंग द सिलेबस, बट इट्स अबाउट एटलीस्ट 70 to 80% जो भी हुआ है इस पे टेस्ट सीरीज देने के आप लायक होने चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स मैं यही बता रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज में बैठो तो आपको देते आना चाहिए. हाँ, अगर आपका 25 का अटेम्प्ट होता तो शायद मैंने ये प्रेशर नहीं डाला होता. मैं गलती से भी एक बार भी मैंने ये सब स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं की होती. जैसे आपका 25, मैं आपके लिए बाद में बात करूंगा. बट सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सच में देना चाहते हो 25? यस और नो? सो 24, एक्सट्रीमली सॉरी, 24 देना चाहते हो? आर यू श्योर अबाउट इट? देन यू हैव टू डू इट, क्योंकि बाकी सब करने ही होगा. अंडरस्टूड? मतलब ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको. एनीवे आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी ऑप्शन हो. बट आपको नवंबर में टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी या नहीं? यस, क्योंकि एटलीस्ट हमें 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट देने ही होंगे. नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में एक, नवंबर के लास्ट वीक में, एंड दिसंबर में 1-2 अगर हो सकता. फुल लेंथ टेस्ट मतलब क्या? प्रॉपर ऑफलाइन आपके बैठ गए, 20 क्वेश्चन आपके सामने पड़े हैं और वो आपको 3 घंटे में लिखे. ठीक है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि अरे यार तो प्रॉब्लम आ रहा है ना. अभी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर हम नवंबर दिसंबर में एटलीस्ट वी विल रीच अप टू द 15. ठीक है, 10 पे तो नहीं होने चाहिए, 15 पे पहुंच जाएंगे. फिर हाँ, जब प्रीलिम निकल जाएगी तो शायद हम और अच्छी मेहनत करेंगे और 15 को 20 तक खींचने की कोशिश करेंगे. अंडरस्टूड नाउ? एवरीवन गेटिंग अ पॉइंट? क्या होने वाला है आगे चल के, कैसे करना है? तो बहुत ज्यादा स्पीड अप करना होगा. एंड नाउ इन दिस जर्नी, सो यू नो दैट कि हाँ इतने सारे उधर भी जीएस के सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट आप नहीं बताया अभी, कैसे मैनेज करें? नाउ यू हैव टू ब्रेक डाउन. प्रीलिम वाले सब्जेक्ट हटा दो. जैसे आर्ट एंड कल्चर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, भले क्लास में चलने दो, चलने देना तो. बट आर्ट एंड कल्चर मत पढ़ो. ठीक है, ज्योग्राफी मत पढ़ो. मत ही करो ना. क्यों कर रहे हो? ज्योग्राफी इतना डिटेल में हो रहा है और वहां पे जाके फिर से स्टार्टर कर लो. खाना भी खाते हो, स्टार्टर भी खाना है, मतलब पूरा पेट भर के खाना खाए, वापस जाके स्टार्टर खाना है. जरूरत ही नहीं है. खाना ही खा लो ना एक बार का, तो खाना खा लिया बस हो गया काम. मतलब मेंस कर रहे हो अगर आप, मतलब सॉरी ऑप्शनल कर रहे हो आप ज्योग्राफी का, देन डू नॉट गो फॉर चीज. देयर इज रियली नो नेसेसिटी फॉर दैट. ओके, तो इसलिए आप ज्योग्राफी हटा दो. टाइम बच गया ना आपका. जिस ज्योग्राफी को आपको 20 दिन तो लगता है ना कवर करने में, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी लगते हैं ना, वो 20 दिन आपके बच गए. एनवायरमेंट पूरा बच गया, क्योंकि एनवायरमेंट यहाँ पे भी डिटेल में होगा, राइट? उसके भी 20 डेज बच गए. तो आर एंड अराउंड यू आर सेविंग 1 or 2 month. इवन फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये टॉपिक्स में भी आप काफी सारा टाइम बचा नहीं मिले. तो वो टाइम जो बच रहा है आपका, इधर इन्वेस्ट करो. और ठीक है ना, वो अगर इन्वेस्ट हो जाए तो मुझे लगता है फिर आप टाइम बाउंड मैनर में सब चीजें कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है कि जो आप कट डाउन कर सकते हो अभी के लिए, जो हमें डेप्थ में पढ़ना है. जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये आप बहुत डेप्थ में पढ़ोगे कब? प्रीलिम्स के टाइम. क्योंकि जनवरी टू मई इज कंसिडरिंग ना, वो तो कंसिडर होगा ना पढ़ने में, होगा ना कंसिडर होगा. जैसे अभी पॉलिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी पॉलिटी रट्टा मारते बैठता है, मतलब आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 है ना, आर्टिकल 21. डू नॉट गो फॉर दैट नाउ. हाँ, अगर आपको करना है पॉलिटी तो नाउ यू कैन डू आंसर राइटिंग. हाँ ठीक है, आंसर राइटिंग वाले पार्ट पे फोकस करो. कि जैसे कोई प्रीएम्बल वाला पार्ट है तो उसके प्रीएम्बल को याद करने से अच्छा है कि उसमें आंसर राइटिंग करो, उसको समझ लो और आंसर राइटिंग करो. राइट? तो इससे आपका क्या होगा ना, टाइम बचती जाएगा. बिकॉज आपके पास सच में टाइम है. मतलब देखा जाए तो आपको ऑप्शनल भी, मतलब देखा जाए वो भी कवर करना है, ये सारी चीजें करनी है. तो यू हैव टू सेव द टाइम. ओके, एंड देन यूटिलाइज द टाइम. राइट? तो होगा पॉसिबल. वो हम ओवर द टाइम में एकदम एक ही पहले सेशन में नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ टाइम बचा है. धीरे धीरे मैं बताते रहूंगा कि हाँ ये टाइम अभी छोड़ दूंगी. जैसे मैं बिंदास बोलता हूँ जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स है, ज्योग्राफी करो ही मत. इधर कौन सा वाला, मेंस वाला नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेवलप होता है. ठीक है, आफ्टर दैट एनवायरमेंट भी नहीं करना है, डीएम नहीं करना है, एग्रीकल्चर नहीं करना है, तो बच गया ना आपका बहुत सारा टाइम, बच ही जाता है. ऐसे भी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स वो भी यहाँ पे कवर होता है, तो जरूरत ही नहीं. ओके, ठीक है, तो ये सारा होगा वहाँ पे. तो ऐसी टेस्ट आपको करनी पड़ेगी. देन यस वी कैन से दैट कि हाँ अपने फुल लेंथ जो टेस्ट होती है, रिवीजन होता है, वो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए. राइट? सो लेट्स डिस्कस सम टॉपिक्स एंड सम बुक लिस्ट फर्स्ट. अगर आप मतलब डिसाइड कर ही रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है सर, हाँ बिल्कुल लेना है. ठीक है, तो एक तो सक्सेस रेशियो भी मैं बताऊंगा कि काफी सारे सिलेक्शंस मिलते हैं और मेरा खुद का ही सक्सेस बताऊंगा मैं इसमें.
मतलब मैं कभी बताते नहीं हूँ जीएस के बैचेस में, बट हाँ यहाँ पे जरूरत है बिकॉज आप भी थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो नेसेसिटी। यू कैन सी माय पेपर, दिस इज लास्ट अटेम्प्ट, मतलब जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, दिस आई वाज हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शन, तो इज इट विजिबल, इट इज 170 and 142, okay, in paper 2 I got 170 and in paper 1 I got 142, so that is around 312, and मतलब आपको पता होगा 312 क्या होता है, ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो दैट वाज माय लास्ट स्कोर, तो जो कि 2018 में था। बाकी एग्जाम के साथ क्या हुआ क्या नहीं वो छोड़ दो, बट वो होता है अभी, वो सब सब तारे भी जुड़ने चाहिए ना, सब बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं जुड़ा था, जो भी था व्हाटएवर। बट द थिंग इज दैट कि yes, this is my last attempt and 170 is around 150 प्लस, तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि हाँ अभी अभी के कंडीशन 150 प्लस आपको पेपर 2 में आ सकता है आराम से, एंड इन पेपर 1 इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट 120 के आसपास आ सकते हैं। और जो गलतियां हमने पहले कुछ अटेम्प्ट्स में की थी, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज स्कोरिंग लाइक ओनली 200 and 210 and it is boosted by 100 marks. How it is possible? It is just because of paper 2, as you said that, है ना, मतलब वो पेपर 2 से हुआ, पेपर 1 में थोड़ा माइनर वेरिएशंस आए, ज्यादा नहीं आए, 100 110 थे, 130 तक 140 तक क्लास में पहुंच गए, बट जो पेपर 2 में था इट्स लाइक 100 के आसपास था, 110 120 मैक्स, वो डायरेक्ट 50 का जंप मेरे लिए, ठीक है, तो वो क्यों था, बिकॉज बिकॉज you have to sometime you have to go out of the book, है ना, वो बहुत जरूरी होता है कि आप कितने केस स्टडीज दे रहे हो, कितने फ्लो चार्ट्स कर रहे हो। अभी कुछ स्टूडेंट्स से एनरोल किया है इस बार जो मेंस दे रहे हैं 2023 की, बहुत बड़ी, मतलब जो शायद हमसे कोचिंग नहीं लिए थे, बाहर इधर उधर कोचिंग करके आ रहे हैं और अभी पेपर दे रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट देखे मैंने उनका पेपर में, मतलब वो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ ये स्टूडेंट इनिशियली यही गलती करता है। व्हाट इज दैट गलती, कि केस स्टडीज नहीं देना, डायग्राम प्रॉपर नहीं निकालना, वर्ल्ड वर्ल्ड डायग्राम एंड इंडियन डायग्राम होगा तो, या रीजनल डायग्राम्स होंगे, वो बहुत नेसेसरी होते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा पकड़ के चलो कि हाँ वो सब जगह पे देनी है, हर क्वेश्चन में पॉसिबल होगा तो देना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो भी कोशिश करो कि उसको पुट करे कहीं। सेकंड थिंग होती है कि आपको फ्लो चार्ट्स मेंटेन करना है। थर्ड एक होता है कि कुछ ना कुछ करंट का, मतलब मैं तो ये कहूंगा सबका कोर ही करंट अफेयर्स है ना, जितना करंट अपडेटेड रखोगे पेपर 2 में स्पेसिफिकली, उतने मैक्सिमम मार्क्स होंगे। जैसे कि नवलिया से ही वेंकट रायपुर, शायद मैंने कुछ बैचेस में बताया था, सुनामी रेजिस्टेंट अवार्ड मिला था। देखो सुनामी के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था पेपर 2, तो सभी स्टूडेंट ने क्या लिखा कि हाँ सेंडाई फ्रेमवर्क मॉडल है, ये करना चाहिए, कोस्टल मैनेजमेंट करना चाहिए, मैंग्रोव प्लांटेशन करना चाहिए, बहुत दुनियादारी लिखी। बट द थिंग इज दैट कि वहां पे अप्रिशिएट क्या हुआ, देखो एज अ आईएएस ऑफिसर आप कहाँ काम करने वाले हो, एक डिस्ट्रिक्ट में, एंड डिस्ट्रिक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है कि लोकल अथॉरिटीज को लेके साथ में चले, दैट इज द बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। तो जितना भी आप ग्रास रूट लेवल पे एग्जांपल्स दोगे, रियलिस्टिक एग्जांपल्स दोगे, दैट अप्रिशिएट द पेपर। ये रिमेंबर, तो मैंने स्टूडेंट्स, मतलब इवन वो अटेम्प्ट में मुझे याद है कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी दिए थे कि जैसे नोले से ही एंड वेंकट रायपुर जो ओडिशा के कुछ विलेजेस है, दे गॉट द यूनेस्को सुनामी रेजिस्टेंट अवार्ड, मतलब एशिया में किसी को मिला होगा तो उनको ही मिला, मतलब इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया सुनामी रेजिस्टेंट मॉडल के लिए, बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एंड दे गॉट दैट अवार्ड। ये कहाँ पे था, कुरुक्षेत्र, या कहीं ना कहीं योजना वगैरह में कहीं ना कहीं पढ़ लिया था, बट द थिंग इज दैट वो अप्लाई भी कर रहा है। जैसे नक्सलिज्म है, तो नक्सलिज्म सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन स्कीम आपने सुनी होगी शायद, कि सरेंडर करो और इनका रिहैबिलिटेशन हम करेंगे। देखो नक्सलिज्म क्यों है क्या है वो आपने सब आयर इंटर सिक्योरिटी में समझ लिया फॉर एग्जाम्पल, बट द थिंग इज दैट कि इनको कैसे बाहर निकालना है, अंडरस्टूड, नक्सलिज्म से बाहर निकालना है, तो इनको हमने क्या किया कि एक स्कीम दी थी सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन, जिसके अंदर 2 से 3 लाख का एक क्या कहते हैं सब्सिडाइज दिया, सब्सिडी दी जाती है, लोन दिया जाता है, एकदम शॉर्ट टर्म लोन कुछ होते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ होता है, तो बेसिकली उनको कुछ अमाउंट दी जाती है, और जिससे उन्होंने क्या है कि केजिंग वगैरह जो होता है, इनलैंड फिशिंग काइंड ऑफ किया था और केजिंग वगैरह किए थे, और उनका इनकम आज 10 लाख पर एनम हो गया। उनको देख के उनके जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने भी क्या कहते हैं, so उन्होंने सरेंडर किया एंड नाउ दे आर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी, राइट। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हम कुछ ऐसे केस स्टडी, ये कुरुक्षेत्र में थी बेसिकली, ऐसे कुछ हमें केस स्टडी उठाने पड़ेगा, कुरुक्षेत्र पढ़ना पड़ेगा, या
बाकी तो वो तो मैं ही करने वाला हूँ आपके लिए, वो सब अपडेशन वगैरह मिलते रहेगा आपको टाइम टू टाइम। तो दिस अपील्स, ओके, मतलब जितने आप एग्जाम्पल्स वगैरह ज्यादा दोगे तो उतना ज्यादा अपील होता है, राइट। जितना आउट ऑफ द बुक जाते हो उतना ज्यादा होता है, रियलिस्टिक एग्जाम्पल देते हो इधर उधर के तो वो ज्यादा अपील हो जाता है, एंड देन यू गेट गुड मार्क्स इन पेपर 2। एंड पेपर 2 इज एक्चुअली रियली क्या कहते हैं उसको, स्कोरिंग सब्जेक्ट। बाकी पेपर 1 में वो आपकी मेहनत है, थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, और जितना वो अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर वो तो आना ही है, मतलब उसमें इनोवेटिव थोड़ा कम होता है, जो है वही लिखना है। बट हाँ, पेपर 2 में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ वहां पे कंपैरिजन बन सकता है और वहां पे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नॉट इट रियलिस्टिक जो है वही लिखना है, आपके कुछ पर्सपेक्टिव नहीं लिखना, बट जो भी है वो पुट करना होगा। जस्ट clear and getting on board. So just go through the syllabus. Just have a look on the syllabus. So part 1 पता है ना सबको, देखा है थोड़ा, फिजिकल ज्योग्राफी एक आता है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। 5 टॉपिक्स है, मतलब पेपर 1 में ही जो 250 मार्क्स का होगा उसमें, यस 5 टॉपिक्स रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। जिसमें ना एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो मैंने बताया ना, एनवायरमेंट में वहाँ पे फायदा है। जियोमॉर्फोलॉजी अगेन मतलब इतने कोर में आप पढ़ने वाले हो तो जीएस में भी फायदा होगा। इसमें देखेंगे हम आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देन आफ्टर दैट ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बहुत प्रोडक्टिव पार्ट है, इसको भी अच्छे से करना होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, मॉडल्स एंड थियरीज, लॉस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। तो ये पेपर 1 होगा। इसका नेक्स्ट सेशन कोई होगा, उसमें दूसरे टीचर है वो आपको डिफाइन करेंगे, अमित सर है वो आपको डिफाइन करेंगे। रही बात ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज पेपर 2 पार्ट 2, यू नो दैट, राइट। एंड इट इज क्वाइटली सिंपल। एंड देखो सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि सबको मार्क आते, जैसे मैंने पहले केस में पूछा ना 100-110 ही आते कुछ कुछ लोग, इसमें बोस्टिंग होता है, लगने को लगता है ये सिंपल, और है भी शायद, क्वेश्चन भी सिंपल है, बट द थिंग इज दैट आप यहाँ पे डिफरेंस बना पाओ तो फिर अच्छा, अदरवाइज यू विल गेट एवरेज मार्क्स। ओके, मतलब वो तो एवरेज ही मार्क्स है। इसके फिजिकल सेटिंग, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट ना, इसमें काफी ज्यादा स्कोप है ये जो आप एडिशनली कुछ करते हो। कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, प्लानिंग, ऑलमोस्ट सभी के सभी जीएस से रिलेटेड है। अंडरस्टूड। इसमें शायद ही रीजनल डेवलपमेंट होगा कि जो उतना पूछा नहीं जाता है, बट ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सभी के सभी आपके कहीं ना कहीं जीएस से कनेक्टेड होगी। बट हाँ, यहाँ पे अलग ही डेप्थ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में बहुत बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके आपको देखने का। एंड ये स्टार्ट टू कनेक्ट विद द पेपर 1 ऑल्सो। समवेयर आपको कुछ मेंशन करना होता है किसी के थियरीज के बारे में, तो वो आप पेपर, ये जैसे प्लानिंग दिख रहा है आपको है ना, पॉपुलेशन सेटलमेंट एंड प्लानिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, है ना, सेटलमेंट एंड प्लानिंग। तो ये टॉपिक सेकंड एंड थर्ड टॉपिक जो है तो पेपर 1 के जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है उससे भी कनेक्ट करता है। अंडरस्टूड। तो वो थोड़ा साथ में मतलब पढ़ना ही होगा आपको, उसके कुछ रेफरेंसेस देने होंगे, उससे भी अच्छे मार्क्स जनरेट हो सकते हैं। देन आफ्टर दैट बाकी इन डिटेल उसमें क्या है क्या नहीं वो तो देखते ही रहेंगे हम बाद में। बट ठीक है, फिजिकल सेटिंग देख लो, थोड़े ओपन आउट किए मैंने टॉपिक्स को। जैसे पेपर 2 में हम जाते हैं, तो पेपर 2 में क्या है, इंडिया रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज क्या है क्या नहीं, वो सारे होंगे। नेबरिंग कंट्रीज जो भी हमारे के साथ कैसे रिलेशन, क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है। और आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसका टेंशन ही मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गया सोचने। पेपर 2 इज लाइक रियली रियली बेस्ट, द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट वी कैन से दैट। एंड स्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज सिस्टम, वाटरशेड, फिजियोग्राफी, उसी के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, रेनफॉल पैटर्न, साइक्लोन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, फ्लड, ड्रॉट, क्लाइमेटिक डिफरेंट रीजन इंडिया के क्या क्या है, इसमें कोपेन फीवर, आरएल सिंह, ऐसे अलग अलग कॉन्वेट्स वगैरह हो गए, तो अलग अलग थोड़े से मतलब जोग्राफर्स आ जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा रहेगा इसमें। बाकी नेचुरल वेजिटेशन वगैरह नॉर्मल पढ़ना है। देन सॉइल वगैरह वो भी एग्रीकल्चर के इसमें बेनिफिशियल होगा, तो ये सभी कहीं ना कहीं पेपर 1 एंड 3 में भी फायदा दे सकते हैं। Then land resources, resource, any kind of resource, including the human resource. Human is also the resource, and all the resources like mineral, biotic, marine, ये सभी resource इंडिया में कैसे है, क्या है, क्या नहीं, उनका यूटिलाइजेशन कैसा है, और इसके रिलेटेड क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। सॉइल कंजर्वेशन रिलेटेड कुछ इंडिया में रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च किए, जिससे प्राइमरी हेल्थ कार्ड, सॉरी क्या कहते हैं उसको, सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड होगा, पता है सॉइल हेल्थ कार्ड सुना है?
जैसे हमारा हेल्थ कार्ड होता है, हमारा जैसे मेडिकल रिपोर्ट होता है वैसे उसके अकॉर्डिंगली हम गोलियां लेते हैं। जैसे मुझ में जो डिफिशियंसी है वही मैं गोलियां लूंगा ना। जैसे मेरा सर दुख रहा है तो पैरासिटामोल लूंगा, ना कि मैं कोई कैंसर की गोलियां लूंगा, राइट। तो सीधी बात है। तो वैसे होता है कि सॉइल में भी कंट्रोल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल में प्रॉब्लम वही हो रहा है इंडिया में अभी तक कि एक्सपेक्ट, मतलब जैसे मेरे कोई बाजू के खेत में कोई 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर डाल रहे तो मैं तो 4 डालूंगा, है ना। ऐसे कंपटीशन, अलग ही कंपटीशन होता है जिससे मेरा फर्टिलाइजर, मतलब जितना फर्टिलाइजर उतना हम क्या सोचते हैं बैक ऑफ माइंड में कि उतना प्रोडक्टिविटी देगा, और इससे क्या हो रहा है कि सॉइल खराब होते जाएगा। तो सॉइल रिलेटेड जो क्राइसिस है, सॉइल डिटोरिएशन जो है, वो कैसे कम करें, उसके रिलेटेड इंडिया के क्या स्टेप्स है, वन ऑफ दैट इज द सॉइल हेल्थ कार्ड। क्योंकि विल डिस्कस दैट, वो तो मेन टॉपिक्स है। एनर्जी क्राइसिस भी अभी इंपॉर्टेंट है, इवन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी को। अभी ये तो थोड़ा इसमें और एक्सटेंड होगा कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी क्या होगी। देन एग्रीकल्चर, मतलब थ्रू आउट द एग्रीकल्चर इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड आजकल क्वेश्चन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इवन जीएस में भी अभी एक्सपेक्टेड नहीं था पहले, मतलब जैसे कि 2017-18 के पहले का पेपर देखो तो जीएस में उतने क्वेश्चन नहीं आते थे एग्रीकल्चर के, बट अभी जीएस में भी बहुत आते हैं। जीएस 3 अगर आप देखो, इवन ज्योग्राफी से भी ज्यादा क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे दिखेंगे, बट स्टूडेंट अभी तक अवेयर, बट आपको फायदा होगा यहाँ पे क्योंकि आप सभी टॉपिक जो पढ़ने वाले हो, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं डिफरेंट, इस पे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, मार्केटिंग कैसे होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का, गवर्नमेंट इसमें कैसे इन्वेस्ट करे, क्या करे, तो ये सब लाइन टू लाइन हम एक एक कवर कर रहे हैं। इंडस्ट्री चैप्टर बता सकते हो, ठीक है। अब जीएस में इस बार थोड़े क्वेश्चन कम दिखे लास्ट 2-3 साल में, बट हाँ आते हैं, मतलब एक आध दूसरा तो आ जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रीजन्स पे आए 2021-2021 में, इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से वो बता, टोटल 5 to 6 इंडस्ट्रियल रीजन्स आते हैं, जैसे दिल्ली कलका, देन पुणे मुंबई, देन सूरत अहमदाबाद, देन कोयम्बतूर रीजन, कोलकाता रीजन, ऐसे 5-6 रीजन्स हैं। तो वो सारा फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री का जो डिविजन्स थे वो पूछे गए थे, वो जीएस में, बट यहाँ पे भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये तो एनीवे इम्पॉर्टेंट है, सभी जानते कि it is important for industrial development also, or any of the development. If transportation is better, then obviously the development will be more smoother. Okay, then cultural setting, historical perspective of Indian society, ये भी थोड़ा सा आपके पेपर 1 में इंटरकनेक्ट होगा थोड़ा सा। टाइप्स वगैरह जो होता है, कल्चरल ग्रोथ क्या होती है, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स क्या है, पॉपुलेशन वगैरह एनालिसिस, देन आफ्टर दैट अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चल रहा है तो उसके कुछ डेटास, तो वो सारे डेटास यहाँ पर है, पॉपुलेशन के प्रॉब्लम, पॉलिसीज, एंड इवन ह्यूमन ज्योग्राफी जो अगर पार्ट देखोगे तो उसमें भी कुछ थियरीज वगैरह है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। देन सेटलमेंट चैप्टर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, वो आपको अगेन रिपीट ये कहाँ पे होगा, उधर किसमें, पेपर 1 के ह्यूमन ज्योग्राफी में, पता है ना सेटलमेंट टॉपिक भी, तो उसमें ये ऑलमोस्ट वहां पे कवर हो जाएगा। इसमें अलग पढ़ने की ऐसे ज्यादा जरूरत है, बट हाँ थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पढ़ सकते, वहां पे कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव आएगा, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना। नेक्स्ट होगा 8 टॉपिक, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, कि जिसमें 5 ईयर प्लान्स वगैरह क्या होता है, वो सारा होगा। इसमें पंचायत राज सिस्टम कितना स्ट्रेंथन होना है, ये आपका पॉलिटी से थोड़ा कनेक्ट करता है, इनिशियल पार्ट, एंड देन आफ्टर दैट वाटरशेड मैनेजमेंट, देन बैकवर्ड एरियाज हो गए, डेजर्ट, ड्रॉट प्रोन एरियाज, इनको कैसे डेवलप किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं डिजास्टर से रिलेटेड भी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट उससे रिलेटेड है, मल्टी लेवल प्लान क्या होता है, सारी चीजें इसमें। देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट, आप सब जानते हो कि आपके इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, कैसे न्यू स्टेट फॉर्म हुए, वो सब कहाँ पे आता है, आपके पॉलिटी में थोड़ा थोड़ा इनिशियल टॉपिक्स में आता है ना, है ना, वही रहेगा सब, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो पॉलिटी में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी इंडिया का रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स आया, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह है तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। इंटरनल भी थ्रेट्स होते हैं तो वो भी इंटरनल सिक्योरिटी में आ सकते हैं, नक्सलिज्म, ये वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। जियोपॉलिटिकल ऑफ साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन, रिया, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी ऑफ चाइना, है ना, चाइना सीपीईसी कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या है, और फिर इसके अगेंस्ट इंडिया का कौन सा एक इनिशिएटिव है क्या, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज लाइक एंडलेस, ऑल करंट अफेयर्स होगी इसमें, मतलब जो पूरे ज्योग्राफी रिलेटेड होगा, एनवायरमेंटल हजार्ड हो, चाहे इश्यू रिलेटेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो,
ये तो मतलब वो तो चलते ही रहेगा, तो उसमें तो चेंजेस नहीं आएंगे आने वाले 1 साल। ये तो हम साथ ही पढ़ने में, मतलब पूरे करंट अफेयर्स मतलब यही रहेगा, है ना, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फूड सिक्योरिटी क्या है, ये तो करंट अफेयर्स रिलेटेड पार्ट। ओके, सो ये एक टेम्पररी हम ले सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ सिलेबस है, और जिसके लिए आपको पढ़नी है बुक्स, वो बताता हूँ अभी आगे। तो बुक्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जो हमने देखा है, सबसे पहले मेरे एंड से जो आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि आप पहले सिलेबस लर्न करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? सिलेबस पहले थोरोली गो थ्रू करो। अंडरस्टूड? मतलब कोई भी बिट हो, पता होना चाहिए सिलेबस का। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सेटलमेंट जो पैटर्न है या सेटलमेंट जो टाइप है, पॉपुलेशन एक्सपांशन जो है या पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा है, तो मैं कहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? लाइक दिस। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है पेपर 1 का, तो क्या वो इंडिया के फिजिकल सेटिंग में कहीं इंटरकनेक्ट हो सकता है? वो पैटर्न। देन जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ओशनोग्राफी के रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा है, जैसे पॉलीमेटेलिक नोडल डीप सी माइनिंग होता है ना, तो वो अगर आपने कहीं ओशनोग्राफी में पढ़ा, राइट, वो कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, एक्सेट्रा, सो दैट यू हैव टू कनेक्ट विद, यस, दैट इज द पेपर 2 इवन, या पेपर 2 के भी कुछ पार्ट्स में कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग रखने होते हैं, और इसलिए आपको सिलेबस करना चाहिए कि हाँ किसका कनेक्शन किससे हो रहा है, तभी समझेगा कि जब आपको बेस्ट पता है, अदरवाइज वो अंडरस्टैंडिंग नहीं। इसलिए तो रिसोर्स की बात करें तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये होगा कि एक तो नोट्स बनाने या नहीं बनाने, एटलीस्ट मेरे पेपर 2 के लिए कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, रनिंग नोट्स बना सकते हो आप, बट नॉट नोट्स लेके आप कुछ भी उठा रहे हो और लिख, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज नॉट रिवाइजेबल ना, रिवाइज नहीं हो पाता है, मत करो। बहुत लोग यही गलतियां करते हैं और प्रॉब्लम हो जाता है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स, इट्स माय रियली ओन कोट है ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स जस्ट गो फॉर आंसर राइटिंग। समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है? आंसर राइटिंग करना है। इफ यू रियली वांट टू राइट समथिंग, जैसे अंदर से बहुत एनर्जी आ रही हो, कहाँ रिलीज करे समझ में नहीं आ रहा है। होता है ऐसे, मतलब कि कुल्लर पढ़ रहे हैं और सर लिखना है मुझे, सर कुछ तो लिखना है, हाथ ही रुक ही नहीं रहा है, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। So first of all, highlight that, read it, highlight that, try to understand, and then form a question on that. Okay? Immediately आपको क्या करना है? क्वेश्चन फॉर्म करना है, या फिर यूपीएससी का मिल जाता है आजकल, वो मार्केट में बहुत सारे कंपाइलेशंस मिल जाते हैं कि जिसमें लास्ट 10 इयर्स के टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नहीं मिला तो बोल देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसको। या फिर मार्केट में न्यू विशाल पब्लिकेशन वगैरह हार्ड कॉपी होगी तो अच्छा होता है, वैसे नहीं तो हार्ड कॉपी कोई तो भी परचेस कर लो, कि जिससे आपका टॉपिक वाइज आपके पास पीवाईक्यूज होंगे, किसके? ज्योग्राफी ऑप्शन। और फिर आपने आज टॉपिक पढ़ लिया कि चलो सर आज फिजिकल सेटिंग का 10 टॉपिक मैंने पढ़ लिया, अब मुझे कुछ तो लिखना है ना, आपने लिखने दे दिया, राइट? तो नाउ टेक दैट क्वेश्चन कि जो लास्ट 10 साल में आया था, 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो 2-3 क्वेश्चन जो भी है तो वो आप लिखना शुरू कर दो, मतलब इमीडिएटली कि हाँ मेरा आज कंप्लीट हो चुका है, नाउ आई हैव टू राइट दैट। ओके, तो वो लिखना इमीडिएटली आपको शुरू कर दो, ठीक है? मतलब वैसे करना है। और आई विल से दैट दैट्स व्हाई डू नॉट मेक अ नोट्स ना, प्रिपेयर सेल्फ नोट्स फॉर ओनली दोस टॉपिक्स व्हिच यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट। मतलब अभी तो क्या ही के सर, मतलब वो समझ भी नहीं आ रहा, वैसे तो सभी डिफिकल्ट लगते हैं इनिशियली, तो इसलिए इनिशियली तो मत करो, तो आपका खुद का बुक बनेगा, खुल्लर पार्ट 2 बन जाएगा, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी है, मतलब एक ही बुक में बताऊंगा आपको पेपर 2 की, दैट इज खुल्लर, तो उसके नोट्स मत बनाओ। And for paper one have special focus on one section, that is physical geography और human geography। अगर आपके पास टाइम कम है तो दोनों में से अभी आप एक को टारगेट करो। मुझे लगता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को अच्छा कर सकते हो आप, उसमें अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है? वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने जैसे बताया, ट्राई टू लिंक द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेपर 1 विद पेपर दैट यू हैव टू फोकस। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ जियोमॉर्फोलॉजी कहाँ से पढ़ना है? तो दैट यू हैव टू रीड इट फ्रॉम, यस, दैट इज सविंदर सिंह। ये तो पता है ना आपको, सविंदर सिंह से पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी। एंड आफ्टर दैट चैप्टर 2 जो होते हैं इसके, तो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, वो भी पढ़ सकते हो आप। चैप्टर 3 थियरीज ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट एक्सेट्रा, वो ले सकते हो। एंड प्रिपेयर इट सिलेक्टिवली एंड मेक पॉइंटर टू हेल्प यू रिमेंबर द मटेरियल। मतलब जो भी है हाईलाइट वगैरह कर सकते हो, ऐसा भी चल सकते हो। ये मैं प्रोवाइड करूंगा, भी लिखो मत इसको। पर देखो इसमें अभी 2 पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी एक है, पहली वाले में नहीं लेना, सेकंड वाले के इसमें सिलेक्टिव टॉपिक पर, राइट? तो इसलिए फर्स्ट वाला ही देखो ज्यादा।
एक मिनट, मैंने टॉपिक भी मेंशन किए थे यहाँ पे, आगे चलिए। तो ये देखो, तो जॉब मॉर्फोलॉजी के लिए वो एक यूज करना है। सेकंड आते हैं, बाकी मैं बता दूंगा आपको बाद में क्या करना है। देन क्लाइमेटोलॉजी है ना, क्लाइमेटोलॉजी के लिए डीएस लाल नाम से एक बुक आती है, वो भी अच्छी है, वो आप पढ़ सकते हो। ओनली स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना है इसमें से, ज्यादा डिटेल मत चलो। और जो आपको लगता है कि क्लाइमेटोलॉजी की ये पार्ट मुझे नहीं समझ में आ रही, तो देन यू कैन यूज दिस। अदरवाइज जो फिजिकल ज्योग्राफी हमने लिखी थी ना अभी क्लाइमेट की सविंदर सिंह की, वही रेफर करो। बट जब आपको लग रहा है कि नहीं कुछ टॉपिक मुझे थोड़ा डेप्थ में जाने की जरूरत है, तो देन यू कैन टेक दिस बुक पीएससी। ओके, दिस इज वेरी गुड। देन आफ्टर दैट बायोज्योग्राफी, उसमें क्लास नोट्स रहेगा, जब टेस्ट सीरीज हम लेंगे तो वो थोड़ा सा उसी को रेफर करो, क्योंकि इसके लिए कोई अलग ऐसा बुक नहीं होगी, होगा तो भी एनवायरमेंट के जो एक बुक आती है सविंदर सिंह की, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, वही पढ़ लेना। एंड जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो सविंदर सिंह की है, तो उसमें भी जो टॉपिक डिफाइंड है सिलेबस में वही पढ़ना है। अदरवाइज इधर उधर के टॉपिक मत पढ़ो, तो ज्यादा जरूरी है। बाकी इंटरनेट का यूज करो बायोज्योग्राफी के लिए, बिकॉज इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स का कनेक्शन ज्यादा है। ओके, देन आफ्टर दैट ये बुक है देखो, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इसमें भी बट कौन से सेलेक्टिव टॉपिक जो आपके सिलेबस में, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का एक ब्लॉक है ना, देखो आप जस्ट लेट मी शो यू। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, फिफ्थ पार्ट दिख रहा है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इसके लिए वो बुक लेंगे। बट इसमें भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर भी कौन से टॉपिक है, लेट मी शो यू। तो दिस टॉपिक्स, ओके, that you have to read it from syllabus. Principle of ecology, human ecological adaptations, influence of man on ecology on environment, या फिर ये पार्ट तो मैं ही लेने वाला हूँ बेसिकली, पेपर वन भी है तो भी, क्योंकि एनवायरनमेंट पे अच्छा कोर हैंड है हमारा, तो वो शायद मैं ही ले लूंगा, राइट। तो इसमें मेरे नोट्स ही मुझे लगता है सफिशिएंट हो जाएगी, क्लास पीपीटी देख लें, और वो भी कंपैरिजन होगा सविंदर एंड अदर मटेरियल, तो आई विल प्रोवाइड दिस, डोंट वरी। ठीक है, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है देखो, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे अच्छा खासा आउटपुट आ जाता है आपको, और इसके लिए आर.डी. दीक्षित एंड सुदीप अधिकारी, इनका मुझे लगता है कि बुक यूज करो, ये दो आते हैं बुक, देखो पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के थॉट्स के बारे में अगर देखा गया, तो ये दो बुक अच्छी है, आर.डी. दीक्षित एंड सुदीप्ता अधिकारी। ये आप एक ले सकते हो। वैसे भी आपको पेपर वन जो भी पढ़ाएंगे और भी अच्छा डिटेल बताएंगे इस बारे में, इसलिए अब इसमें ज्यादा मैं टच नहीं कर रहा हूँ, उनका भी एक बार पर्सपेक्टिव ले लेना, दोनों भी लेना है, क्योंकि इसमें दोनों के अलग टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो आर.डी. दीक्षित जो है ना, तो उसका चैप्टर 1 to 8 ऐसे कुछ पढ़ना है, एंड चैप्टर 11। उसके बाद जो सुदीप्ता अधिकारी है, तो उसके चैप्टर 11 एंड 13 to 16 है ना, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो वो देख लेना, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये पढ़ लें, मतलब ये लिख के रखना है। बाद में ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन जो है, उसके भी चैप्टर, सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ो, 7, 8, 9, 10 एंड 12। ओके, ये लिख लेना है पेपर वन के लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इवोल्यूशन। फिर बुक्स तो बहुत सही है तो उसका टेंशन मत लो, बुक्स तो होने वाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना। आई नो दैट आपके अंदर क्या चल रहा है, सब मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे एकदम जल्दी नहीं आया था। आर.डी. दीक्षित जो है, तो उसमें 1 to 8 एंड 11 वो तो बताया मैंने, ज्योग्राफी रिपीट हो चुका है। उसके बाद देखो ये सुदीप्ता अधिकारी, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या पढ़ना है वो, इसलिए डबल मत समझो उसको, ठीक है, वो एक ही। बाकी रही बात लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर वाला जो पार्ट होगा, तो उसका फिर वो तो थोड़ा करंट अफेयर्स का मटेरियल वगैरह होगा, वो देखेंगे हम। बाकी आगे मैं बताता हूँ। रही बात अभी मॉडल्स इन ज्योग्राफी, वो तो हमने बताया। बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह वो सब हम कभी बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या फिर सर आपसे बात करेंगे उसमें। मॉडल्स इन थ्योरीज में भी अब मेरे टॉपिक पे आता हूँ मैं, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी मतलब बुक्स कौन सी लेनी समझ में आया सबको, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, डीएसएलआर, ज्योमॉर्फोलॉजी भी लेके रखो, इसमें सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ो। अगर वो सर ने आपको बताया कि मत पढ़ो, देन डोंट रीड, ठीक है। अदरवाइज ये दो तो लेके पड़ेगा, फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी, राइट। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी एक लेके रखो, ये रहने दो अभी के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी रूपा पब्लिकेशन की आती है, वो भी अच्छी है, यस। तो वो भी रूपा मेड सिंपल बोल के आती है, वो पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी आता है, ठीक है। एनवायरमेंटल तो लेना ही आपको,
तो सविंदर सिंह की वो तो लेके रखो. Then modest in geography by Majid Hussain and evolution of geographical thoughts by Majid Hussain. Okay, समझ में आया सिंपल से. ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा आपको. पीडीएफ लिंक चेक करके आपको दे दूंगा डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक था हमारा? पेपर 2. तो पेपर 2 के जितने भी टॉपिक मैंने आपको दिखाए, ठीक, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एवरीथिंग, एवरी टॉपिक, physical setting, resources, agriculture, industry, transportation, communication, right? Cultural setting, settlement, regional development होगा, planning. There is only one. That is only ना कि इस सभी के लिए उसके भी अलग अलग पार्ट है, बट मुझे लगता है बस आप यही बुक ले लो, इसके बाहर मत चलो. क्योंकि क्या होगा, कोई आके आपको बोल देगा कि माजिद हुसैन पढ़ लो या ये पढ़ लो, तो उससे इतना मतलब नहीं है. The simple single book is there, and that is this one. The fuller book is more than sufficient, but it is not. It's not like कि अपडेशन उतना नहीं होता है इस बुक में, क्योंकि उनके खुद के लिमिटेशन है. एक बुक अभी आ जाते तो उसको क्या अगले साल को रिवाइज नहीं कर सकते, उनके भी खुद के लिमिटेशन, राइट? सो आपको इंडियन बुक लेना पड़ेगा. तो स्टैटिक यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा. इट इज एनफ फॉर स्टैटिक मटेरियल फॉर पेपर 2, यू नो दैट. एंड नीड नॉट रेफर टू एनी ऑफ द सोर्स एज आई ऑलरेडी मेंशन, है ना. पॉइंटर, शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह, जो भी मैप्स निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है. मैंने पहले आपको बताया कि पेपर 2 में आपको मैपिंग वगैरह बहुत अच्छा लगेगा. मैप निकाल पा रहे हो? नहीं तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस करो. लेक्चर से शुरू होने से पहले वही करते आने के लिए तो पूरा प्रैक्टिस ही करते रहो कि इंडिया का मैप कैसे निकाले, वर्ल्ड का कैसे निकाले. कोशिश करो कि अराउंड 8 to 10 सेकंड्स में आपको इंडिया का निकालते आना चाहिए, राइट? और बाकी रही बात वर्ल्ड के लिए तो 20 to 20 सेकंड, 25 सेकंड्स में कोशिश करो. बाकी अपने नोट्स, अपने टेलीग्राम चैनल एक सुमित सर नोट्स, वहां पे मेरे कंटेम्प्रेरी इश्यूज रिलेटेड जो भी अपने नोट्स से मिलते रहेगा आपको. मंथली मैगजीन्स, एनवायरनमेंट के भी, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी, एंड ज्योग्राफी के भी, राइट? वहां पे वो तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज के लिए चलते रहेगा. फुल ऑन अपडेशन रहेगा आपकी. उसके बाद योजना कुरुक्षेत्र प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल. जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये बहुत मैटर करेगा. मतलब आपको ऐसा रट के ही जाना है, जैसे स्ट्रैटेजी करके जाना है कि यू नो दैट नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, मेरे पास रेडी केस स्टडी है. आई नो दैट वाटर रिलेटेड इश्यूज पे क्वेश्चन आ सकता है, आई हैव रेडी केस स्टडीज. टाउन प्लानिंग, एब्रप्ट डेवलपमेंट पे आता है, देन आई हैव रेडी केस स्टडीज फॉर दैट मैटर, राइट? इवन क्या कहते हैं इसको, हिमालयन इकोसिस्टम कुछ डैमेज होती जा रही है, उसके रिलेटेड कुछ केस स्टडी होगी, तो यू नो दैट यू मस्ट हैव इस वेल कनेक्शन विद दैट केस स्टडी होगी. मतलब उसको थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा. ऐसे 10-15 केस स्टडीज टॉपिक वाइज आपको लिखे ही जाना. मतलब एटलीस्ट उसको प्रिपेयर करना है कि हाँ मुझे पता है ये कहाँ फेंकना है ना. मतलब ये यहाँ पे आने वाला है, बस वो देना है. मतलब ये रेडीमेड से एग्जाम में जाके हम याद कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली. तो हमें रेडी होना पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक है, मुझे यहाँ पुट करना है. So infrastructure, border organization related होगा. Just imagine कि India's border security is not strengthened, etc. etc. उस टाइम पे कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको कुछ लिखना होगा. फिर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंट रोल क्या है वो लिख सकते हो. तो वो भी केस स्टडी होगा ना, कि जैसे उन्होंने चारधाम परियोजना डेवलप किया, सियोंग ब्रिज अभी रिसेंटली डेवलप किया, राइट? वो आप लिख सकते हो. ढोला सरिया ब्रिज अभी हमने पढ़ा कुछ क्वेश्चन में, तो वो डेवलप किया. तो ये रिसेंट डेवलपमेंट से जो सर अटल टनल, वो सब छोड़ दो, अटल टनल तो पता है, राइट? तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपको कहीं ना कहीं नोट करना होगा. जस्ट फॉर गेटिंग माय पॉइंट. तो बेसिकली टॉपिक कोई भी रहे, आपकी केस स्टडी रेडी होनी चाहिए कि हाँ इस रीजन में मैं ये केस स्टडी देने वाला, इस रीजन में ये देने वाला, इस रीजन में वो देने वाला, राइट? देन आफ्टर दैट सिंपल रहे केस स्टडी. बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि वो आप फ्रेम कर लो, है ना. मतलब जो कि रियल नहीं है, ऐसा गलती से मत करना. बिकॉज उनके हाथ में मोबाइल होता है, आपके हाथ में नहीं होता है, बट उनके हाथ में होता है, वो कर सकते हैं सर्च. मतलब दे कैन गो फॉर गूगल इवन, कि जैसे मैंने नोलेसली एंड वेंकट रायपुर बताया, और सच में है क्या वो चेक करेंगे. अगर ऑब्वियसली दे हैव द नॉलेज ऑफ दिस, उनको नॉलेज होगा ही अगर हमें है तो. बट अगर आपने गलती से भी कुछ फ्रेम करके लिखा है, क्योंकि केस स्टडी बहुत बार स्टूडेंट ऐसे करता है कि जलयुक्त शिवा फॉर एग्जांपल, चलो अभी ये तो एक नॉर्मल है, बट कभी कभी कोई डीएम का एक एग्जांपल दे देते हैं कि दिस इज आईएएस ऑफिसर हैज डन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन दिस एरिया, ठीक? और वो भी अलग होता है, बट इफ इट इज ट्रू,
ओके, मतलब समझ में आ रहा है कि लोकल की भी आप कोई ना कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक आईएएस ऑफिसर ने पुणे रीजन में ऐसे ऐसे इनिशिएटिव किया। आप दे सकते हो जो कभी न्यूज में, मतलब बेसिकली इतना ज्यादा, मतलब ना कि वो स्कीम है ना कुछ है, बट तभी भी आप एग्जांपल दे सकते हो, बट ऐसा मत करो कि आप उसको फ्रेम कर लो, है ना, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो डोंट डू दिस, मतलब कभी ऐसे गलती से भी मत करना, जो रियलिस्टिक है वही लिखो। बाकी मैप वगैरह जो है वो तो निकालना ही पड़ेगा आपको। फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी वो तो हमने डिस्कस किया, बट हाँ चलो इसके लिए एक ही था, कुरुक्षेत्र योजना एंड इंडिया रूट, विच एवर द रिसेंट इज दिस, इंडिया रूट आपको खरीदना है, मतलब कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये किस क्यों खरीदना है, क्योंकि ये खुल्लर में अपडेशन पे लगेगा। क्योंकि खुल्लर में रोड डेंसिटी बताइए, फॉर एग्जांपल इन UP part there is a road density is about 80%, but now if it is changed up to 80 by 90 whatever, so then you have to update it. तो बहुत सारे डेटा है जो आपको इसमें अपडेट करने ही पड़ते हैं खुल्लर में, एंड देन हु कम्स ओवर देयर, देन इंडिया। जैसे इंडिया का विंड एनर्जी कितनी कितनी है, जैसे अभी खुल्लर में देखोगे तो 5-6% कुछ यूज है, बट दैट इज नाउ रिच टू 8% इन लास्ट रिसेंट डेटा, 8% तक कुछ होती है, मतलब टोटल हमारे एनर्जी, मतलब समझ में आ रहा है, तो हमें ये अपडेट करना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा डेटा, इंडिया में ऑथेंटिकेट रिसेंट वाला इंडिया। बाकी थोड़े से ये इंडिया थ्रू मैप्स आता है ना, जिसमें मैप्स अच्छे दिए होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें थीमेटिक मैप नहीं आते। थीमेटिक मैप मतलब क्या होता है, व्हाट इज द थीमेटिक मैप्स? देखो एक आपका पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल में आपके स्टेट के बाउंड्रीज होते हैं, फिजिकल में आपका क्या होता है कि जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होता है। और तीसरा एक मैप होता है थीमेटिक, जिसमें क्या होता है कि मिनरल के डेडिकेटेड मैप होगा, देन एग्रीकल्चर डेडिकेटेड कुछ तो भी मैप होगा, क्रॉप डेडिकेटेड मैप होगा। तो ऐसे मैप की आइडियाज यू विल गेट दैट इन दिस बुक। ओके, दैट इज प्रेम पटेल की है, अच्छी ये भी, या फिर सिद्धार्थ की भी आप ले सकते हो। उसमें आपको आइडियाज मिलते हैं, हाँ ये थीमेटिक मैप में डेवलप कर सकते हैं। जैसे नेशनल वाटर बेस ऑफ इंडिया, तो ऑल 6 नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, नेशनल वाटरवे नंबर 1 2 3 4 5 है ना, ये आपको शो करना है। इफ यू वांट टू शो अबाउट द सागर वाला प्रोजेक्ट एंड द पोर्टलेट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बट उसके लिए कैसे मैप ड्रॉ करें, सो यू विल गेट दैट ओवर देयर इन दिस बुक। सो दैट इज रियली गुड बुक, यू कैन गो थ्रू इट। एंड कुछ ब्लैक मैप वगैरह भी परचेस कर लो, वो भी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी डाउन टू अर्थ मैगजीन वगैरह है। ओके, इकोनॉमिक सर्वे तो बता दिए, योजना कुरुक्षेत्र वो तो रहेगा ही। योजना मतलब बस वही कि मल्टीपल हो गए। जब आपका साइंस एंड टेक रिलेटेड योजना होगा, कुछ कभी कभी योजना वो हिस्ट्री रिलेटेड भी आता है, तो उसको स्किप कर दो, ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए। जब भी योजना होगा कुछ रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड या ओवरऑल हमारे सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो ही पढ़ो। कुरुक्षेत्र तो डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर, यू नो दैट। कुरुक्षेत्र कंप्लीटली किसके रिलेटेड आता है, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, उसी लाइन पे होता है। जब आपकी नई स्कीम्स आती कोई, या कुछ नए स्कीम्स के कुछ डेटा आते हैं, तो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, बट हाँ पिक करते रहो कि हाँ ऐसा मैं केस स्टडी यहाँ पे दे सकता हूँ, ऐसी केस स्टडी उससे मैं उठा सकता हूँ, राइट। ये मुझे नई स्कीम मिली है, उज्ज्वला स्कीम मिली है, ये स्कीम है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, प्रोवाइड टैप वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, एंड कितना वाटर प्रोवाइड करना है सबको, हाउ मच लीटर, 55 लीटर पर पर्सन पर डे। तो ये डेटा कहाँ से मिलते हैं फिर, है ना, इसका अचीवमेंट कितना हुआ, 2024 तक हमें अचीव करना है, बट पहले पता है कितना था, ये 2022 था, हुआ ही नहीं। तो फिर अभी 24 की, राइट। तो मतलब समझ में आ रहा है कि 2024 तक अचीवेबल है या नहीं। हाउ विल यू विल गेट टू नो दैट, यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस डिफरेंट मैगजीन्स, कुरुक्षेत्र वगैरह में अपडेट होते रहते डेटा। या नहीं मिला तो फिर फाइनली अपना इसमें मिल जाएगा, सर्वे वगैरह में मिल जाता है। और देखो डिफाइंड है कि आने ही वाले हैं, तो आने वाले वाटर पे एक नई क्वेश्चन मिलेगा ही अब। तो ऐसे फिर ये हम कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। बाकी तो मैं तो एक ही चीज को मानता हूँ, वो है आंसर राइटर। मतलब वॉट एवर जो भी रहेगा, आप कितने भी टॉपिक पढ़ लो, बट आई विल सजेस्ट दैट कि मतलब कुछ भी हो जाए, आपको फाइनली एक ही चीज करनी है, एक टॉपिक तुमने कवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर रिसोर्स, जिस दिन वो कंप्लीट हुआ उस दिन आप, उसके नेक्स्ट दिन हम समझ लो एग्रीकल्चर शुरू कर रहे हैं। क्यों शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर? इवन मैं भी क्लास में या आप भी खुद के पढ़ने में क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव कंप्लीटेड रिसोर्स स्टार्ट।
And if you have the confidence, so why we are not writing the answers? है ना? अगर आप समझ लो कि क्लास में, मैं भी समझ रहा हूँ कि क्लास में अगर वो अच्छा कंप्लीट हो चुका है, आपने भी बुक से खुल्लर से वो रिसोर्स पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल, राइट? अगर इतना सब कुछ हो गया है तो फिर लिख क्यों नहीं रहे? नोट्स तो बना सकते हो कि जैसे अभी फुल्लर से मैंने कहा रिसोर्स चैप्टर की नोट बनाओ, सर कल ही बताओ, है ना? तो कल ही आप लिख के लिखे, तो आप वो कल रेडी रहोगे उसके साथ. बट व्हेन इट्स द मैटर ऑफ आंसर राइटिंग रिलेटेड टू रिसोर्स चैप्टर, देन मे बी आप में से बहुत ही कम लोग करें, और वही नहीं होना चाहिए. इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक तक तभी मूव करेंगे व्हेन वी हैव डन ऑल आंसर राइटिंग ऑफ द प्रीवियस टॉपिक. ओके, एनी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, तो तब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे. इससे अच्छा आंसर राइटिंग होगा, और फिर उस आंसर्स को कैसे और फ्रेम करें, अपडेशन कैसे करें, न्यू डेटा कैसे अपडेट करें. रिसोर्स पे समझ लो आपने बहुत टारगेट किया सोलर एंड विंड पे, बट आई विल से दैट व्हाई देयर इज नो हाइड्रोजन मिशन. अंडरस्टूड? मुझे हाइड्रोजन मिशन चाहिए था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, बिकॉज इट इज वन ऑफ द क्लीन सोर्स फॉर ऑल ऑफ अस, बट आप वो भूल गए, है ना? तो जब ये आंसर लिखने जाते हैं, देन वी डाइवर्सिफाई आवर थिंकिंग. ओके, और वो शायद हम वहाँ पे और भी अच्छे से काम करें. ठीक, समझ में आ रहा है? सो ये सब हम करेंगे. तो फाइनली अब आपके लेक्चर जो है आपको क्या तारीख दी है? 17 तारीख ना? 17 से दिया है ना? तो लेक्चर्स वगैरह कब शुरू हो गया कैसे? 17 से दिया होगा. तो ठीक है, आई होप सभी ज्वाइन करेंगे ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ. और तब तक थोड़ा मैप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लो. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, व्हाट आई वांट एग्जैक्टली, ब्लैंक पेजेस, जिसको बाइंडिंग होता है ना और साइड से मार्जिन होता है, वो रखो. 2 बुकलेट रखो, एक जस्ट फॉर योर नोट्स मेकिंग, एंड दूसरी डेडिकेटेड, वो यूपीएससी का जैसे पैटर्न होता है ना वैसे चाहिए फॉर आंसर राइटिंग. से 2 बुकलेट्स आपको साथ में रखनी. फर्स्ट थिंग. सेकंड, ब्लैंक पेजेस साथ में रखो. एटलस कौन सा लेना है? यू नो दैट स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, जो अपना कॉमन है वही ले लो. ठीक है, वही करना है. बस ये थोड़ी प्रायर कुछ चीजें, और सिलेबस रट के आना बस. तो कुछ भी कहाँ पे भी पूछूंगा तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए. दिस पार्ट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन, यू शुड नो दैट. ओके, ये सारी चीजें करके आ जाओ. बाकी तो यही तक था मेरे एंड से. बाकी आपके एंड से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. इज देयर एनी डाउट टू दिस? एंड जल्दी शुरू कर देना. बस 23 तक आपको करना है, दिसंबर 23 तक सब कवर करेंगे. या जीएस पार्ट ना. Just preparing for mains. I'm talking about mains. In mains, you can even skip entire geography, because we are going in very minute detail of this physical setting or every bit of our GS part. So you can skip the geography, environment, and DM and agriculture from GS part. GS मतलब GS को उसको प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना. क्या जरूरत है? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं. जैसे what you are going to study in physical geography. Tell me that first. Yes, in GS part. What are the topics are there? Geomorphology, oceanography, right? Plate tectonics, this theory, that theory, Alfred Wegener theory, convectional current theory, Alfred Wegener की जो quantitative theory वो की convectional current theory. This theory का next version आप पढ़ लेंगे. ठीक है? So that means मतलब आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो. There is no need to study over there. उतना टाइम बचेगा ना फिर आपका. उतना ही टाइम हम यहाँ पे put कर सकते हैं. हाँ, if your attempt is 25 like उसका है, तो आप आराम से दोनों भी कर लो. जीएस में भी टाइम डाल दो, इधर भी डाल दो, क्योंकि आपके पास टाइम है. अब जून तक आराम से कर सकते हो. तो जून तक आप चलने दो आपका जो भी चल रहा है. अंडरस्टूड? बट नॉट फॉर अदर. जो 24 को टारगेट करे बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने वाले हैं, दे आर लाइक कि दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. अब इस बार जो मेंस दे रहे हैं वो फेल हो गए, आपके साथ वो फिर से बैठेंगे. उनके तो नोट्स तैयार है, सब कुछ तैयार है. तो फिर आपको अगर उनके साथ जाके खड़ा होना है, तो उनके लाइन में जाके खड़ा होना है, उनके साथ कंपटीशन करना है, देन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली सोचो ना. यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी टू रीच अप टू दैट लोकेशन. मतलब वो तो आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, इसलिए आपको टाइम का बहुत मैनेजमेंट जरूरी है. अदरवाइज फिर 25 anything else? Yes. Yeah.
So your preparation must be like you can do one thing. So till June, the same plan. Okay, same plan you have to extend till the June. Is you have extra 4 to 5 months. Okay, then you can give your more time to GS also, essay also, like this. Okay, even simultaneously, as I suggested for these other students, you can skip environment, art and culture, and this topic. So you cannot skip this topic if you're already taking the classes of this particular subject. So you can do both simultaneously. Or just imagine कि आप 3 घंटे ऑप्शनल कर रहे हो, है ना? एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ जीएस के लिए भी अच्छा दे दो। मतलब जैसे कि आप इनके लिए एक्सपेक्टेड क्या स्टडी आवर्स होने चाहिए ऑप्शनल के लिए, सो दैट इज आई विल सजेस्ट कि 4 to 5 hours. Okay, 4 to 5 hours you have to invest in anyway in the option. You don't have मतलब आपके लिए, बट हाँ आप क्या कर सकते हो कि आप 3 घंटे आप पढ़ सकते हो, जैसे 3 hours फॉर ऑप्शनल, 2.5 hours for GS, 2.5 for another GS. You can take 2 GS also and can do current affairs, essay writing, manage these things. Okay, but for these students, yes, you can take only 1 GS now and 1 option and other classes. I'm sorry. Daily 1 hour or 1.5 hours. And for current affairs, you can just take the coverage of editorial first, because other tidbit news and other this factual news. So already we are covering in the magazine. No? So my magazine is also their dedicated magazine, Environment Geography and DF. You can also refer the other well-known magazines, the Vision or Insight, whatever. So you can refer that. So do not invest your time in small news, factual news, subject-wise news. You have to just focus on editorial. Okay, read editorial carefully, and then, if possible, do precise writing. That will be beneficial. Okay, or you can form a question on editorial, whatever the title of the editorial. Okay, just form the question and do answer writing after reading this. Okay, so that investment is definitely beneficial. But don't invest time in factual and small news. Okay, already they are very well covered in all the magazines, even beyond that newspaper. They are taking the coverage of multiple newspapers. For example, if whenever I make the magazines, so I use the Hindu also, Indian Express also, then after that Economics Times also. Okay, so almost I refer 4 to 5 newspapers, and apart from that, PIB is also there, Down to Earth is also there. So we are doing this for all, but this is pretty more. Okay, this is factual related. Understood? Means you have to do for answer writing. That is the only thing. Yes, anything else? Any question? और कुछ है किसी का क्वेश्चन? No, I'm not talking about कि मैंने जो स्कोर किया वो only 300 is about you. No. आपका डायरेक्टली 300 आएगा ऐसा तो मैं नहीं कमिट कर सकता, बट हाँ इट इज पॉसिबल कि अगर आप 3 घंटे भी पढ़ लेते हो डेली अच्छे से, सो यू विल गेट गुड स्कोर एटलीस्ट इन पेपर 2. आई कैन डेफिनेटली एश्योर यू कि हाँ आप अच्छा 150 तक लिख के आ सकते हो, बट वही की स्ट्रैटेजी थी जाओ. ठीक है, सिलेबस टू लाइन कवर बहुत भी नहीं करने, बट ठीक है अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा. ठीक है, बट इट इज पॉसिबल टू गेट गुड स्कोर इन पेपर 2. I don't know about paper 1 because paper 1 is all about your understanding. Paper 1 अगर आप अच्छा अंडरस्टैंड कर लेते हो, अच्छा उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, then you can do it. मतलब पेपर 1 में एवरेज आ ही जाता है अगर आप अच्छा कर रहे हो, डेडिकेटेड कर रहे हो. It's possible even 250, 260 is also good. 260, 270 is also good. You know that 260, 270. In very first attempt you will get around 250, 260. That is quite possible. But it's again on your efforts ना. मतलब मैं आज तो नहीं बोल सकता हूँ, आप लिखोगे तब मैं एनालाइज करूंगा कि हाँ ये सही जा रहा है. जैसे अभी मेरे पास 4 स्टूडेंट के आंसर्स आ जाते हैं. जैसे अभी इस टेस्ट सीरीज को जो 23 क्लियर हो चुके प्रीलिम्स, उसमें से काफी लोगों ने टेस्ट सीरीज भरे, तो कल परसों मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आए. तो वी गेट टू नो दैट कि हाँ इसका होना है कुछ तो, है ना. मतलब वो हमें वाइब्स आ जाते हैं क्योंकि आंसर देखने को मिलते हैं. सो दैट इज द थिंग. अब शो करो, जस्ट शो इट, है ना. देन
मतलब 150 क्या 170 180 तक लेके जाएगा उसको, कैसे नहीं जाता, शायद इससे भी ज्यादा 327 कौशिक को थे उसी साल, तो जिसका रैंक 5 था। ओके, मतलब ऐसा नहीं है, मुझसे भी और भी मार्क्स लाइक दैट, बट